ये आपका समय है, आप यूज कीजिए आपके हिसाब से। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवादी हैं। आज शाम को जैसे कि भाई प्रार्थना कर रहे थे, किस रीति से प्रभु हमें अलग अलग जगहों से जोड़ता है, हम प्रभु का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। সবাকে জয় যিশু। আর মুই এলা ঈশ্বরের বাক্য কম, আর তোমরা সবাই শুনিবেন। मैं धन्यवादी हूँ धूपगुड़ी कलीसिया के लिए कि उन्होंने ये समय दिया, और हम प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए जो धूपगुड़ी में हैं। মুই ধন্যবাদ দেন ধূপগুড়ি মন্ডলীর সবাকে যে মোক একটা মौका দিছে কবার জন্য, ওই জন্য ধন্যবাদ দেন। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा हम सब लोग आशीष पाएं और हमारी आत्मिक तरक्की हो। আর এই বাক্যর দ্বারা আমরা আশা করি যে আমরা আশীর্বাদ পামু এবং আমরা জীবনে বাড়ি পামু। आइए हम आज के शाम के अध्ययन के लिए एक पत्री को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां चैप्टर और उसका 1 से लेके 12 तक आप राजवंशी भाषा में पढ़ सकते हैं। बाकी जो भाई लोग हैं वे अपनी भाषा में देख सकते हैं। 10 का 1 से 12, पहला कुरिन्थियों 10 का 1 से 12। 1 করন্থীয় 10-এর 1 থেকে 12 পর্যন্ত আমরা দেখিমু। কারণ হে ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা নয় যে তোমরা অজ্ঞাত থাকো যে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন ও সকলে সমুদ্রের মধ্যে দিয়া গমন করিয়াছিলেন, এবং সকলে মসির উদ্দেশ্যে মেঘ ও সমুদ্রে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন, এবং সকলে একই আত্মা ভক্ষ ভোজন করিয়াছিলেন, আর সকলে একই আত্মিক পেয় পান করিয়াছিলেন, কারণ তাহারা এমন এক আত্মিক শৈল হইতে পান করিতেন যাহা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল, আর সেই শৈল খ্রিস্ট। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর প্রীত হন নাই, ফলত তাহারা প্রান্তরে নিপাতিত হইলেন। এই সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপে ঘটিয়াছিল, যেন তাহারা যেমন অভিলাষ করিয়াছিল আমরা তেমনি মন্দ বিষয়ে অভিলাষ না করি। আবার যেমন তাহাদের মধ্যে কতক লোক হইয়াছিল তোমরা তেমনি প্রতিমা পূজক হইও না। যথা লিখিত আছে, লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল, পরে ক্রিয়া করিতে উঠিল। আর যেমন তাহাদের মধ্যে কতক লোক ব্যভিচার করিয়াছিল এবং একদিনে 23,000 লোক মারা পড়িল, আমরা যেন তেমনি ব্যভিচার না করি। আর যেমন তাহাদের মধ্যে কতক লোক পরীক্ষা করিয়াছিল এবং সর্পের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল, আমরা যেন তেমনি প্রভুর পরীক্ষা না করি। আর যেমন তাহাদের মধ্যে কত লোক বচসা করিয়াছিল এবং সংহারকে দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিল, তোমরা তেমনি বচসা করিও না। এই সকল তাহাদের প্রতি দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঘটিয়াছিল এবং আমাদেরই চেতনার জন্য লিখিত হইল, আমাদের যাহাদের উপরে যুগকলাপের অন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব যে মনে করে আমি দাঁড়াইয়া আছি সে সাবধাन হোক, पाछे पड़िया जाए। धन्यवाद भाई, परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जो है वो कुरिन्थियों के भाई लोगों को याद दिला रहा है कुछ घटनाओं के बारे में जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जो घट चुकी थी, और उसके द्वारा कुछ बातें सिखाना चाह रहा है। আর এটা আমরা দেখিতে পারি পৌলুস কিছু কসে তার ভাইও ঘরক যে পুরাতন নিয়মে কিছু ঘটনা হয়েছিল ওইটার সম্বন্ধে পৌল কসে। यहाँ पर हम देखते हैं पहले पद के अंदर जिस प्रकार
पौलुस जो है उनको बता रहा है कि उनके बाप दादा जो थे, जिस प्रकार परमेश्वर ने उनकी सहायता करी थी, और वो बादल जो कि रात को आग का खंभा बनता था और दिन में वो बादल उनको लेके चलता था, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनको लाल समुंदर में से पार कराया था, उन बातों को वह दोबारा दोहरा रहा है। আর এটা কিনা এক এক করে প্রথম নাম্বার বাক্যতে লেখা আছে যে পোল কসে এটা কিনা যে পুরাতন নিয়মে যে একটা আগুনের খাম্বার মতন ছিল ওইটা দেখা হয়েছিল, এবং সমুদ্র লাল সমুদ্র যে ছিল সেটা সম্বন্ধে পোল কসে। और यहाँ पर परमेश्वर के चमत्कार को पौलुस बता रहा है, और वह बता रहा है किस प्रकार सब के सब, एक भी नहीं परंतु सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। আর এটা কিনা সবাই, একজন না সবাই সমুদ্র পার হয়ে গেছে। और परमेश्वर जो है उसका काम हम देखते हैं, जब वो कुछ करता है तो उसमें किसी प्रकार का हम देखते हैं, वो हर एक से प्रेम करता है और वो किसी को छोड़ता नहीं है, जिस प्रकार वो चाहता है कि सब लोग विश्वास लाए और कोई भी नाश ना हो। আর এটা কিনা দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরের একটা কথা যে ঈশ্বর সবাইকে ভালোবাসে, আর ঈশ্বর চায় যে কাহো যেন বিনষ্ট না হয় কিন্তু যেন অনন্ত জীবন পায়। इसलिए पौलुस जो है यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि सब के सब समुद्र के बीच पार हो गए। फिर वो दूसरे पद में हम देखते हैं, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और इससे हम देखते हैं कि पौलुस बता रहा है कि उस समय जो उनका अगुआ मूसा जो था वह उनको लेके आगे चल रहा था, और वो ये भी बता रहा है कि बादल में जो है उनकी पहचान थी, यानी कि परमेश्वर जो था वो वो एक तरीके से परमेश्वर में उनकी पहचान थी। और हम देखते हैं समुद्र में जो वे अलग किए गए थे मिस्र से। थोड़ा छोटा छोटा बोलने से अच्छा है, इतना लॉन्ग बोलने से थोड़ा। ओके भाई, ओके सॉरी। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस जो बता रहा है कि बादल में जो है यहाँ पे लिखा है, और सब ने बादल में, यानी আর कि পৌলুস এটা কছে সবাই বাদল মানে আকাশের যে মেঘের মধ্যে তোমরা আছে। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है उनको लेके चल रहा था, और एक उसने अपना अगुआ मूसा को चुना था। আর এটা কিনা দেখা যাচ্ছে যে ঈশ্বর উমাক আহ্বান করেছেন এবং ঈশ্বর উমাক নিয়ে যাচ্ছেন मूसा। और बपतिस्मा जो लिया, उसका जो मतलब है बपतिस्मा लिया, वो यही है कि परमेश्वर की आज्ञाएं जो उसने अपने अगुआ मूसा को दी थी उनका वे पालन कर रहे थे। আর এটা যে বাপ্তিস্মা দিশে এটা এটা দেখাচ্ছে যে ঈশ্বর মোশা যে আছে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করেছে। हम देख रहे थे कि परमेश्वर पुराने नियम के अंदर जो यहूदी लोग थे उनको वो किस हद तक प्रेम करता था कि उनकी एक एक बात जो है वो पहले से ही सोच के रखता था। আর আমরা এটা দেখতে পারি ঈশ্বর যে ছিলেন, ঈশ্বর খুব ভালোবাসেন উমাক এবং ঈশ্বর উমার প্রতিটা এক একটা কথা মনে রাখেছেন। उनके भोजन के लिए भी परमेश्वर जो है कितना चिंता करता था, और उनको ठीक समय पे पर्याप्त भोजन भी दिया करता था। আর উমার যে জেলা খিদা নাগিছে খাওয়ার, সেই খাওয়ারও ঈশ্বর উমাক জোগাড় করে দিছে
এবং উমাক সাহায্যও করেছে ঈশ্বর। उनके कपड़े भी हम देखते हैं जो कि नहीं फटे थे, और हर चीज जो है परमेश्वर ने जब उनके बारे में सोचा था, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी दया में उन लोगों को मिस्र देश से निकाला था। আর উমার যে কাপড় ছিল সেই কাপড়ও ঈশ্বর উমাক দিছে এবং উমাক মিশর দেশ থেকে ঈশ্বর বার করেছে। तीसरे पद में पढ़ते हैं, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह थी। यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है कि जो भी वो कुछ दे रहा था उसमें एक आत्मिक शिक्षा थी। আর ঈশ্বর এটা কিনা কসে যে ঈশ্বর উমাক সবসময় সেই আত্মিক খাওয়ার আত্মিক জল উমাক দিছে এবং যে আমরা যে জায়গা গেছিল সেই জায়গা তো ঈশ্বর উমার সঙ্গে ছিল। क्योंकि अगर वो उनको भोजन नहीं देता तो वे मर जाते, और अगर उनको पानी नहीं मिलता तो वहां बिना जल के मर जाते, यानी कि परमेश्वर उन्हें निर्भरता सिखा रहा था। আর ওটা কিনা যদি জল না থাকিলে হয় আমরা মারা গেলে হয়, যদি খাওয়ার না থাকিলে হয় আমরা মারা গেলে হয়, কিন্তু ঈশ্বর উমাক শিখাছে এটা কিনা। जितना भी इंसान परमेश्वर पे निर्भर होता है उतना ही वो उसका क्रिया, उसका जो कार्य होता है, चाहे वो भोजन खाए चाहे वो पानी पिए, वो आत्मिक मतलब में बदल जाता है। আর উমরা যে আছে উমরা ঈশ্বরের নির্ভর করা, যতই খাক বা যতই কিছু করুক কিন্তু উমা ঈশ্বরের দিকে। परमेश्वर इंसान को ये सिखाता है कि मुझ पे तू निर्भर रह, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, तू मेरी सृष्टि है। क्योंकि अगर वे उस पर निर्भर नहीं रहेगा तो हम देखते हैं वो आदम और हवा की तरह गलत चुनाव लेगा। আর ঈশ্বর চায় যে ঈশ্বর কয় বলে যে মুই তোর সৃষ্টিকর্তা, মুই তোকে সৃষ্টি করিসু, আর তুই মোরতে নির্ভর কর। আর যদি আমরা যদি ঈশ্বরের নির্ভর না করি তাহলে আমরা সেই আদম আর হাওয়ার মতন খারাপ রাস্তায় চলে যাবো। अगर किसी व्यक्ति के पास सब कुछ हो और वो जो है उसको किसी चीज की आवश्यकता ना हो तो वो दुनिया में सुखी रहेगा, परंतु उसको एक बहुत जो खास शिक्षा है निर्भरता की, वो उसका स्वाद नहीं चख पाएगा। আর একটা লোক যদি থাকে ওর যদি সমস্ত কিছু থাকে, ওর যদি কোনো অভাব না থাকে, কিন্তু ও যদি ঈশ্বরের শিক্ষা যদি না পায় তাহলে ওর কোনো লাভ নাই। जब इंसान परमेश्वर पर निर्भर करता है, जब इंसान परमेश्वर पर पूरी पूरी रीति से निर्भर करता है, तो हम देखते हैं उसमें परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। আর মানুষ যখন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে এবং পুরাপুরি ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে সেলা ঈশ্বর খুশি হয়। और परमेश्वर उस व्यक्ति के और निकट आ जाता है। আর ঈশ্বর ওই লোকের পাশে আসে। आप अगर पढ़ लीजिए बाइबल धर्मशास्त्र के अंदर जितनी भी पुराने नियम की जो घटनाएं हैं और नए नियम की जो घटना है, खासकर से पौलुस की जो घटना है, वे सब के अंदर हम देखते हैं निर्भरता एक बहुत बड़ी शिक्षा थी। আর আমরা দেখি পুরাতন নিয়মত বা নতুন নিয়মত আর বেশিরভাগ আমরা দেখি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে পোলের জীবন দ্বারা যে সব সময় আমরা নির্ভর করেছে ঈশ্বরের উপর। फिर हम पढ़ते हैं कि परंतु परमेश्वर ने उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। আর এটা কিনা দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর উমার উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না, সেই জন্য উমরা জঙ্গলে চলে গেছে। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग उसमें से ऐसे थे उस भीड़ के अंदर जो कि उनके साथ तो आ गए, परंतु वो शारीरिक रूप से आ गए, परंतु उनका दिल जो था वो मिस्र में था।
আর কিছু লোক তো ছিল যা উমরা আসছিল, কিন্তু উমরা শরীর উমার আসছিল, কিন্তু আত্মা উমার আইসে নেই। উমার আত্মাটা মিশরতে ছিল। और ये बहुत ही अहम बात है, ये बहुत ही जो है जरूरी बात है कि जब इंसान परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर चाहता है कि उसके और उसके बीच में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो उसके दिल में। আর ঈশ্বর চায় যে যখন কোনো মানুষ ঈশ্বরের ঠে আইসে, যাতে তার ভিতরে কোনো গিল্টি না থাকে, কোনো কোনো কিছু না থাকে, যাতে পুরোপুরি ভাবে ঈশ্বরের ঠে আইসে। परमेश्वर और इंसान का बहुत ही नाजुक रिश्ता है। परमेश्वर इंसान के हर एक विचार को सोचने से पहले ही परख लेता है। আর ঈশ্বর আর মানুষের সম্পর্ক খুবই ভালো একটা সম্পর্ক, কিন্তু জেলা মানুষ আইসে ঈশ্বরের ঠে। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, यानी कि परमेश्वर ने उनको आगे जाने नहीं दिया, वहीं पे उनको मार दिया। আর এটা কিনা আমরা দেখতে পারি যে জঙ্গলও তোমাক এক এক কাট্টা করিছে এবং উমাক ওটা কিনায় মারি ফেলাইছে। और आज भी जो है बहुत सत्य है, जो इंसान इस प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता वो इस दुनिया में जन्म लेता है और इस दुनिया में ही ढेर हो जाता है और वह उस स्थान में नहीं पहुंचता जो परमेश्वर का स्थान है। আর আমরা এলাও দেখতে পারি যে অনেক লোক আছে উমরা একত্রিত হয়, কিন্তু উমরা ঈশ্বরের ঠে যাবার পারে না। मुझे नहीं पता कि आज की तारीख में कौन परमेश्वर का बच्चा है कौन नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कौन उसका बच्चा है। আর মুই জানো না যে কার ঈশ্বরের সন্তান, কার ঈশ্বরের সন্তান নয়, কিন্তু ঈশ্বর জানে যে কার ঈশ্বরের সন্তান আর কার ঈশ্বরের সন্তান না। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, वह भी इन यहूदी लोगों के समान उस भीड़ में आ जाते हैं। वह भी हर सुसमाचार को सुनते हैं और भीड़ में बैठते हैं, परंतु वे जो हैं इस दुनिया में ही ढेर हो जाते हैं, यानी कि उनका हृदय जो है वो मिस्र में ही लगा रहता है। তো এই জগতে অনেক লোক আছে যারা ইহুদি লোকের মতন উমরা আইসে এবং ঈশ্বরের বাক্য শুনে, কিন্তু সুসমাচার উমরা শুনে, কিন্তু উমরা একঠে হয়ে আরো চলে যায়। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार इन यहूदी लोगों को निकाल के ला रहा था मिस्र देश में से और उस वायदे के जगह पर ले जा रहा था, इसके अंदर जो है परमेश्वर चाहता था कि जो भी उस प्रॉमिस लैंड में जाएंगे वो लोग वही होंगे जो उससे पूरी रीति से प्रेम करते हैं। 1% नहीं, 99% नहीं, 99.9% नहीं, लेकिन 100% जो है यानी कि उनके दिल में किसी और के लिए जगह ईश्वर की नहीं होगी। তো উমাক যেটা থেকে বার করিছে, উমার মধ্যে পুরাপুরি ভাবে মানে একদম 99% না, 90% না, 100, একদম পুরাপুরি 100% যাতে উমার মধ্যে প্রেম থাকে। इसलिए आज भी परमेश्वर चाहता है कि इंसान उससे मेल कर ले, इंसान जो है अपना मन फिराए, इंसान जो है जब उसका सुसमाचार सुनता है वो जल्दी से मेल कर ले, ऐसा ना हो कि वह भी इस दुनिया में ढेर हो जाए। আর ঈশ্বর চায় যে ঈশ্বরের সঙ্গে যাতে মিল হয়ে যায়, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যাতে সম্পর্কটা ভালো থাকে। ঈশ্বর এটা চায়, যাতে ঈশ্বর এটা চায় না যে উমরাও এই জগতের লোকের মতন বিনষ্ট হয়ে যাক हम এবং पढ़ते हैं ঈশ্বরের কথা।
जी, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 20 और 21 में इस प्रकार लिखा है, वरन यहूदी और यूनानी के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। আর প্রেরিতের কাজ 20-21 আমরা দেখি পারি যে প্রভু যীশু কইছে যে আমরা যাতে প্রভু যীশুর কাজ করি পারি। परमेश्वर की ओर मन फिराना, আর ঈশ্বরের দিকে মন ফেরানো। इन लोगों ने जो जिनका जो ढेर हो गए थे, इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी? इन्होंने मन नहीं फिराया था। इनका मन कहाँ था? इनका मन मिस्र में था, इनका मन पीछे था। सबसे बड़ी गलती यही थी। अगर हम अपना मन ना फिराएं और अगर हम ये ना चाहें कि हमें पाप से आज़ादी चाहिए, हमें दोबारा मिस्र में नहीं जाना है, तो हम देखते हैं कि हम जो हैं उसके बच्चे नहीं बन सकते। আর আমরা দেখি পারি যে ঈশ্বর চাইছিল যে উমার পুরাপুরি ভাবে মন ফিরাক এবং উমার মন ছিল মিশর দেশত এবং উমরা পুরাপুরি স্বাধীনতা পায়াও উমরা স্বাধীনতা না পাওয়ার মতন ব্যবহার করছে। আর ঈশ্বর চায় যে উমরা স্বাধীনভাবে যেন জীবনযাপন করে। और हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। ये यहूदी लोग जो थे, ये उस परमेश्वर पे विश्वास कर कुछ लोग करते थे कि उसी ने हमें लाल समुंदर में से पार किया है, परंतु कुछ और लोग जो थे वो उनका विश्वास डगमगा रहा था। हेलो, আর ঈশ্বর যে ছিলেন ঈশ্বর हेलो, हाँ मैं रिपीट करूं भाई? हाँ हाँ कीजिए। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा है प्रेरितों के काम 21 के दूसरे भाग में हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और जो यहूदी लोग जो थे उनका विश्वास जो था परमेश्वर में स्थिर नहीं था। আর আমরা এটা দেখি পারি যে আমার প্রথম আমার যে জিনিস করা উচিত কি প্রভু যিশুর উপরে বিশ্বাস করা। এবং কিছু জিহুদি লোক ছিল যারা প্রভু যিশুর উপরে বিশ্বাস করে নাই। प्रिय भाई और बहनों, आज ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो अपना मन फिराए और उस कार्य पर जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया है उस पर विश्वास करें। क्योंकि हम ये लोग जो थे ये जाना तो चाहते थे उस स्थान पर जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, परंतु इन्होंने एक बहुत भारी गलती करी। আর আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, ঈশ্বর চায় যে আমরা যাতে ঈশ্বরের কাছে যাই, প্রভু যিশুরতে আমরা যাই এবং প্রভু যীশু খ্রিস্ট কালবারি ক্রুশত আমার সমস্ত পাপ তিনি সম্পূর্ণ করেছেন, যাতে আমার পাপ সমস্ত কিছু তাই চুকাইছে এবং আমরা যাতে তারতে যাই। 6वें पद में हम पढ़ते हैं, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। यानी कि हाँ पढ़िए भाई। আর এটা কিনা আমরা দেখি পারি যে উমরা লোভ করেছিল, কিন্তু আমরা যাতে লোভ না করি। यहाँ पर हम देख रहे हैं खासकर से ये बातें हमारे लिए दृष्टांत, यानी कि पौलुस कह रहा है पौलुस कह रहा है कि ये बातें जो हैं आज भी लागू हैं। আর পোল এটে কসে যে এখনো কিছু কিছু কথা আছে যে কথাগুলো এখনো হয়।
और हम यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने लालच किया और वे बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। आज भी जो इंसान अपने जीवन से सौदा ना करे, उसका उसका मन जो है वह दुनिया से हटे, उसका मन दुनिया में ना रहे, तभी वो जो है उस जीवन में पहुंच पाएगा जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है। আর আমরা দেখির পারি যে এই জিনিসটা যে আমার যাতে আমার মন এই জগতের দিকে না থাকে এবং খারাপ জিনিসের দিকে না থাকে, কারণ প্রভু যীশু খ্রিস্ট এটা থেকে আমাকে বের করিছে, আর এবং আমরা যাতে ঈশ্বরের দিকে তাকাই। फिर हम पढ़ते हैं 10:7 के अंदर, वहां इस पर लिखा है, और ना तो मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनसे कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। और हम देखते हैं यहाँ पर जो है निर्गमन 32 के अंदर जो है उन्होंने एक गाय का बछड़ा बनाया था सोने का और उसकी पूजा करने लगे थे। আর আমরা দেখির পারি যে আমরা এটা কিনা বাইবেলে লেখা আছে 10:7 যে আমরা যাতে মূর্তি পূজা না করি। আর উমরা যে ছিল ইসরায়েলিরা, উমরা জেলা ঈশ্বর উমাক বার করেছিল সাগর থেকে, সেলা উমরা একটা সোনার বাছুর বানাইছে, সেই বাছুরটার পূজা করিছে। और यहूदी लोगों ने जिन्होंने इतना कुछ देखा था परमेश्वर के हाथ का चमत्कार, हम देखते हैं उनका अंदर से जो हृदय था वो किस प्रकार का था। उन्होंने थोड़ी सी देर में जो है मूर्ति पूजा करने लगे और एक सोने के बछड़ा को बनाकर उसके सामने गिर गए। আর আমরা দেখির পারি এটা কিনা যে উমরা কত তাড়াতাড়ি ঈশ্বরক ভুলিয়া উমরা সেই একটা সোনার বাছুর ছিল, সেই বাছুরটার পূজা করেছে। प्रिय भाई और बहनों, हमारा हृदय जो है वो हम अपने आप नहीं बदल सकते, परंतु हमारा हृदय जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ताकत से ही परिवर्तित हो सकता है। আর আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমার হৃদয় আমরা নিজে চেঞ্জ করি, বদল করি পাবার নই, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাক বদলের পাবে। क्योंकि हमारे दिल में एक असाध्य रोग लगा है जो हमें दोबारा दोबारा मिस्र देश लेकर जाता है। আর আমার শরীরত একটা রোগ আছে, যেই রোগটা আমাক বারবার মিশর দেশত নিগায় और जिसका उद्धार नहीं हुआ है, जिसको पवित्र आत्मा की उस पर छाप नहीं लगी है, उस व्यक्ति को वो अंत में मिस्र देश ही ले जाता है। আর যে ব্যক্তির উদ্ধার হয় নাই, পবিত্র আত্মার ছাপ্পা লাগে নাই, তার যে হৃদয় আছে তাক মিশর দেশত তাক ধরি যায়। हम देखते हैं कि ये यहूदी लोग जो थे मिस्र की गुलामी में थे, और जब ये इन्होंने चलना शुरू करा वहां से, और ये इनकी आशा थी कि ये उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, परंतु हम देखते हैं ये गुलामी में थे, थोड़ी देर की इनको आजादी मिली और फिर गुलामी में मर गए। আর এটাই আমরা দেখির পারি যে মিশর দেশের যে আমরা গোলামি ছিল, উমাক কিছু সময়ের জন্য উমাক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, আবার উমরা বন্দী হয়েছে, আবার উমরা ওটে কিনায় মারা গেছে। इंसान भी जो है वो जब जन्म लेता है वो शैतान की गुलामी में होता है, और जब उसको वचन मिलता है तो वो थोड़े दिन उसके आज़ादी के उसे दर्शन दिखते हैं, परंतु अगर वह अपना मन ना फिराए और यीशु मसीह पर विश्वास ना करे तो वो गुलामी में ही अपने गुरु के पास जो शैतान है चला जाता है, अपने पिता शैतान के पास चला जाता है। আর একজন মানসি জেলা জন্ম নেয়,
তাই শয়তানের গোলামিতে ও জন্ম নেয় আর তারপরে কিছু সময়ের জন্য তাই আজাদি হয়, কিন্তু আবার ও কি করে আরো ও শয়তানের গোলামিতে চলে যায়। ये दृष्टांत जो हैं ये उस समय के लिए नहीं थे, परंतु पौलुस जो था आज के समय की बात कर रहा है, ताकि हम इससे क्या सीखते हैं। हम इससे ये सीखते हैं कि इंसान जो है उसका मेल परमेश्वर से जल्द होना चाहिए, तभी वो असली देश में जा पाएगा। আর পোল চান্দাসে যে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা তৈরি করার জন্য, যাতে উহার সঙ্গে সম্পর্কটা তৈরি হয় ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের, আর তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা তৈরি হয়, আর যে ঈশ্বর যে দেশের প্রতিশ্রুতি দিছে সেই দেশটার যাতে আমরা যাবার পারি। और हम पढ़ते हैं 8 के अंदर, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उसने कितनों ने किया, और एक दिन में 30,000 मर गए। और ये है हम देखते हैं गिनती 25 के अंदर, जब यहूदी लोगों ने गलत शादियां करी थी उन लड़कियों से जो मोआब की लड़कियां थी, और बालम जो प्रॉफिट था उसके द्वारा वो उसकी बातों पे चला करते थे। আর আমরা এটা দেখতে পারি যে মোয়াব দেশের যে অনেকগুলা মেয়ে ছিল, উমাক বিয়া করিয়া নিগাইছে, এবং 30,000 না 25,000 মহিলা বিয়া করেছিল। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको मना किया था इस प्रकार की शादियां करने के लिए, परंतु उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। गिनती 25 में हम पढ़ते हैं, और जाकर उन लड़कियों से शादी कर ली, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और व्यभिचार में फंस गए। আর ঈশ্বর কইছে যে এলা পাপ, এলা তোমরা করেন না, কিন্তু তবু ঈশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া এই বিয়া করিয়া এই পাপত পড়িছে। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत बड़ी चेतावनी देता है एक व्यक्ति को, परंतु जब वह इंसान उसका उल्लंघन करता है तो हम देखते हैं वो एक बहुत घोर पाप में फंस जाता है। আর ঈশ্বর বারবার আমাক সচেতন করে এবং আমাক কয় যে যাতে আমরা পাপ না করি। हम देखते हैं कि 30,000 मर गए जो है उसके अंदर। দেখি যে 30,000 লোক মারা গেছে, গীত সংহিতা লেখা আছে। और हम देखते हैं कि गिनती 25:9 में उसकी घटना के बारे में लिखा है कि वो एक बहुत बड़े अकाल से मर गए थे। परमेश्वर जो है जब किसी को ताड़ना देता है तो हम देखते हैं कि वो उसको पूर्ण रूप से उसको मारता है। আর গীত সংহিতা 25:9 লেখা আছে যে ঈশ্বর জেলা তাড়না দেয় সেলা সবাই মারা যায়। हम 9वें पद में पढ़ते हैं, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांप के द्वारा नष्ट किए गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को कभी परखना नहीं चाहिए। আর আমরা দেখি পারি যে ঈশ্বরও কোনো সময় পরীক্ষা করা উচিত নয়। ঈশ্বরক কোনো সময় পরীক্ষা করা উচিত নয়। অনেক লোক ছিল যা সাপের কামড়তে মারা গেছে। और ये बहुत जरूरी है एक जीवन के अंदर, क्योंकि हम आगे में पढ़ते हैं 10वें के अंदर, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। यानी कि उनको फिर भोजन नहीं मिल रहा था, वे भोजन के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, वे परमेश्वर पे आरोप लगा रहे थे। আর আমরা দেখি পারি যে উমা খাওয়ার পাছে না দেখি
অনেক মানে খারাপ অনেক রকম কমপ্লেন করেছে উমরা, এবং উমরা কছে যে আমার খাওয়ার নাই, আমাকে থেকে কেন বার করছেন, এরকম কমপ্লেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ইসরায়েলিরা করেছে। इन लोगों में क्या এবং गलती थी? इन लोगों में हम देखते हैं ये गलती थी कि ये परमेश्वर को नहीं पहचाने थे। আর ইমরার দোষ আমরা এইটাই দেখির পারি যে ইমরা ঈশ্বরক চিনির পায় নাই। और हम देखते हैं जो इंसान परमेश्वर को नहीं पहचानता वो थोड़ी देर उसके साथ चलता है, उसके बाद कुड़कुड़ाने लगता है, उसके बाद बुड़बुड़ाने लगता है, उसके बाद जो है परमेश्वर पे दोष लगाने लगता है, तूने मुझे भोजन नहीं दिया, तूने मुझे रोटी नहीं दी, तूने मुझे पैसा नहीं दिया। हर प्रकार का जो है षड्यंत्र वे रचने लगता है। আর আমরা দেখির পারি যে যা ঈশ্বরক চিনির পায় নাই, বুঝির পায় নাই, তাই কিছু কিছু সময়ের জন্য ঈশ্বরের ঠে থাকে, তারপরে আরো আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা শুরু করে এবং খাওয়ার জন্য অভিযোগ করে এবং টাকার জন্য অভিযোগ করে, কিন্তু আমরা ঈশ্বরক জানির পায় না। और ये जो है पाप है 10-10 पे कोरा का और दातन का और इब्राहिम का, जो कि गिनती 16-14 में हम पढ़ते हैं कि वे जो है कुड़कुड़ा रहे थे, और गिनती 16 के अंदर खाने के लिए वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। तो उस रीति से परमेश्वर इनसे क्रोधित था। আর আমরা এটা দেখির পারি যে আমরা এটা কিনা খাওয়ার জন্য আমরা মানে কেমন করেছে, ছটপট ছটপট করেছে, আমরা খাওয়ার জন্য এই সব জিনিসগুলো করেছে, আমরা এটা দেখির পারি। इसलिए हम देखते हैं कि 11वें के अंदर, परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत में के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। আর আমরা দেখির পারি যে আমরা এরকম ব্যবহার করেছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, এবং এই সব জিনিসগুলা লেখা আছে মানে এই জগতের সৃষ্টির আগে। प्रिय भाई और बहनों, आज हम जगत के अंत में रहते हैं, और ये चेतावनी पहली तो जिसका उद्धार नहीं हुआ है, जिस व्यक्ति का, वो उन लोगों के समान है जो 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 वहीं पे ढेर हो गए थे, और जिनका उद्धार हो गया है वे लोग जो हैं इसको एक चेतावनी के रूप में समझें। আর আমরা এটা দেখির পারি যে এই লোকগুলো যে ছিল যারা এই অবধি প্রভু বিশ্বাস করে নাই, অনেক লোক ছিল যারা মানে মারা গেছে, ঢের হয়ে গেছে, কিন্তু এই জগতে আমরা এলা লাস্ট মানে শেষ পর্যায়ে আছি, আমার এলা ভাবা উচিত এবং ঈশ্বরক জানা উচিত। आज प्रभु यीशु मसीह जो है हमसे क्या बात करता है? आपसे पिछले हफ्ते क्या बातें करी थी? আর আমরা দেখির পারি এটা কিনা আগের সপ্তাহে তোমার সঙ্গে ঈশ্বর কি কথা কইছে, প্রভু যীশু খ্রিস্ট কি কথা কইছে আগের সপ্তাহে তোমার সাথে। प्रभु यीशु जो है, जो हमारा परमेश्वर है, वो उसका जो रिश्ता है बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ता है। আর আমরা দেখির পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্টর যে সম্পর্ক ছিল মানুষের সঙ্গে, এই সম্পর্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। और अगर अगर हम देखते हैं कि अगर वो हमसे बातें नहीं कर रहा है या आज तक बात नहीं करी, अगर आज तक बात नहीं करी है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा उद्धार नहीं हुआ है। और अगर उसने 1 महीने पहले हमसे कुछ भी बातें नहीं करी हैं, या 1 हफ्ते पहले कुछ भी बात नहीं करी है, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। আর যদি আমরা দেখি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার সঙ্গে কথা কয় নাই, 1 সপ্তাহ আগে কোনো কথা কয়নি, 1 মাস আগত কোনো তো কথা কয় নাই, তাইলে হয়তো আমার উদ্ধার হয় নাই। কিন্তু আমার চেষ্টা করা উচিত ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কওয়ার জন্য। इन यहूदी लोगों के साथ ये बादल जो था, एक चीज थी कि यहूदी लोग जो थे जब भी बादल उठा करता था वो एकदम से तैयार हो गए उस बादल के साथ साथ चलते थे। एक चीज उन्होंने बहुत ठीक तरीके से मानी, जिसका उन्होंने उस आज्ञा का हम पढ़ते हैं वचन के अंदर, कभी उल्लंघन नहीं करा। एक आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन नहीं करा, वो ये था
कि जब वो बादल उठता था तो वो तुरंत उस बादल के पीछे जाते थे। আর আমরা দেখি পারি যে উমরা একটা জিনিস খুব ভালোভাবে ইয়া আহ, একটা জিনিস ভালোভাবে আমরা লক্ষ্য করিছে যে জেলায় মানে মেঘ আছে, আমরা মেঘের সঙ্গে সবসময় চলিছে। और ये भी हो सकता है हमारे जीवन के अंदर कभी कभी हम जो हैं कभी भी किस प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है, कोई मसीह प्रोग्राम होता है या कोई जूम मीटिंग होती है, या हम सोचते हैं कि हमें जुड़ना जरूरी है। আর কোনো সময় হয়তো কোনো প্রোগ্রাম হয়, জুম মিটিং বা যে কোনো কিছু ঈশ্বরের সম্পর্কে কিছু মিটিং হয়, তো আমার একত্রিত হওয়া উচিত। और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु हम देखते हैं यहूदी लोग भी वो बादल के पीछे पीछे चलते थे, परंतु उसमें से कितने लोग वहीं पे ढेर हो गए। আর এই জিনিসটা ভালো যে আমরা ঈশ্বরের জুম মিটিং এ আমরা দেখি এবং যে কোনো ঈশ্বরের বাক্য পড়লে আমরা একত্রিত হই, এটা ভালো। কিন্তু ইহুদি লোক যে ছিল, উমরাও সেই বাদলের পিছন পিছন মানে সরি মেঘের পিছন পিছন উমরাও চলিত ধরছে। उन्होंने उन्होंने जब उनका ढेर हो गया होगा तो उन्होंने ऊपर जाके ये नहीं बोला होगा कि हम तेरे पीछे पीछे चलते थे, हम जब भी बादल आगे जाता था हम तेरे साथ आते थे, तूने हमें क्यों मार दिया। तो हम भी आज जो है अगर हम जूम मीटिंग पे जुड़ते हैं और हम सब मीटिंग अटेंड करते हैं, यही काफी नहीं है। আর আমরা দেখি যে উমরা সবাই মারা গেছে, এবং যদি আমরা দেখি যে যে কোনো জুম মিটিং আমরা অ্যাটেন্ড করেছি বা যে কোনো ঈশ্বরের প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছি, যে এটাই যথেষ্ট নয়। बहुत से लोगों में गलत फहमी है कि हमारा काम जो है केवल मीटिंग में जुड़ना है, प्रचार को सुनना है और परमेश्वर से हमें कोई लेना देना नहीं। আর অনেক লোক আছে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের মানে মিটিংও অ্যাড হয়, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। तो ये चेतावनी है, यहाँ पे पौलुस लिख रहा है, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहती है लिखी गई है। वो चेतावनी ये है कि इंसान का रिश्ता नाता यीशु मसीह से व्यक्तिगत हो। আর আমরা এটা দেখি পারি যে জগতের শেষ সময় যে লেখা আছে যে প্রভু যিশুর সঙ্গে সম্পর্ক যাতে মানুষের সব সময় থাকে। अब मूसा की आवश्यकता नहीं है कि मूसा हमें जो है लेकर जाएगा, या किसी भविष्यद्वक्ता की आवश्यकता नहीं है। अब वो समय खत्म हो गया, अब मंदिर का पर्दा फट गया है और अब परमेश्वर कहता है तुम सीधा मुझसे बात करो। अब किसी और की आवश्यकता नहीं है। তো এটা কিনা মসিরও দরকার নাই এবং কোনো ভাওবাদীরও দরকার নাই, ডাইরেক্ট ঈশ্বর কাছে যে মোর সঙ্গে তোমরা কথা কও। কারণ মন্দিরের পর্দা যে ছিল দুই ভাগ, মাঝখানে ফাটিয়া দুই ভাগ হয়ে গেছিল। আর প্রভু যিশু, কারণ এই জিনিসটা হয়েছিল প্রভু যীশু খ্রিস্ট কালভারি সে মৃত্যুবরণ করেছে আর এই পর্দা ফাটে গেছে, আর ঈশ্বরের সঙ্গে আমার মানে সম্পর্কটা ডাইরেক্ট হয়ে গেছে। फिर 12वें पद में पढ़ते हैं, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वे चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। আর আমরা দেখির পারি 12 নম্বরে দেখির পারি যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক যাতে আমার ভালো থাকে, যাতে আমরা পড়ি না যাই, হুচুট না খাই। यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं इस भीड़ में। एक तो एक वो लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी कि दुनिया के लोग हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं बिल्कुल स्थिर हूँ, मैंने कोई बुरे काम नहीं करे हैं। तो वो तो बिल्कुल अंधकार में है और वो 100% गिरेगा। আর আমরা এটা দেখির পারি দুই রকমের লোক এই জগতে। আমরা এই জগতের লোক ভাবে যে আমরা কোনো পাপ করি নাই, আমরা কোনো খারাপ কিছু করি নাই, কিন্তু আমার কোনো কিছু হবে না। আর এই জিনিসটাই আমরা সব থেকে বেশি ভুল করে। परंतु यहाँ पर पौलुस जो है विश्वासी लोगों को लिखते हुए कह रहा है कि वे लोग खासकर से चौकस रहें, क्योंकि अगर वे सोचते हैं कि वो स्थिर हैं, और हम देखते हैं शैतान जो है
वो समय के हिसाब से अपना बारूद छोड़ता है। सॉरी भैया, और एक बार रिपीट कीजिए, सुनाई नहीं अच्छा, दिया। और यहाँ पर पौलुस जो है विश्वासी लोगों को लिखते हुए कहता है कि जो सोचता है कि वे स्थिर है और वो बिल्कुल ठीक है, वे चौकस रहे कि ऐसा ना हो कि वो शैतान कोई परीक्षा लेकर आए और वो गिर पड़े। আর এটা কিনা কছে যে আমরা যাতে সব সময় আমরা যাতে সব সময় জাগনা থাকি, এবং শয়তান আমারতে যদি আনে কোনো পরীক্ষা আনে, যাতে আমরা যাতে পড়ি না যাই। हम देखते हैं शैतान जो है वो हर समय इंसान पर, एक विश्वासी पर बारूद नहीं डालता। वो समय का इंतजार करता है और जब ठीक समय आता है तो तभी वो अपना बारूद उस व्यक्ति पर डालता है। আর শয়তান যে আছে, শয়তান সব সময় বিশ্বাসী লোকের তাড়নায় ফেলে না। উহায় অপেক্ষা করি থাকে যে কোন সময় সুযোগ বুঝিয়া উহায় তাড়না বারুদ ফেলে চান্দায়। परंतु परमेश्वर हमें एक इसमें प्रोत्साहित करता है, एक खुशी की बात दिखता है 13वें अध्याय में। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हर एक विश्वासी को परीक्षा में से बाहर निकालने का रास्ता भी बनाकर रखता है। আর আমরা দেখির পারি যে ঈশ্বর এমন কোন পরীক্ষা দিবে না যাতে আমরা এটা পাস করি না পারি। क्योंकि एक আর दिन ऐसा ঈশ্বর যদি ঈশ্বর যদি আমাকে এই পরীক্ষা দেয়ও, এটা থেকে বাইর করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে রাস্তাও বের করেছে। क्योंकि हम देखते हैं एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ गलत हो रहा होता है, जब कुछ ठीक नहीं चलता है, जब सब हमारे ऊपर सब दुखों का बोझ डाल दिया जाता है, जब घर में सब कुछ उजाड़ हो जाता है, जब लड़ाए जाते हैं, जब असहमति हो जाती है और जब कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो जाता है और टूटने लगता है, हम देखते हैं शैतान पूरे बल से इंसान के विश्वास को हिलाना चाहता है। আর অনেক সময় আমরা দেখির পারি যে শয়তান আমাক খারাপ জিনিসের মধ্যে ফেলে চান্দায়, এই জগতের মায়ার মধ্যে ফেলে চান্দায় আমাক, আমার যাতে ঈশ্বরের থেকে বিশ্বাস আমার দূরে চলে যায় এরকম করে চান্দায় সবসময় শয়তান আমাক এরকম করে। इसलिए इंसान जो है वो निरंतर परमेश्वर के सामने नम्र बने, परमेश्वर पे निर्भर रहे और परमेश्वर की सामर्थ को हर रोज मांगे। वो ये ना सोचे कि आज मुझे सामर्थ की आवश्यकता नहीं है। আর সেই জন্য মানুষের উচিত সব সময় ঈশ্বরের সাহায্য নেওয়ার জন্য, যাতে ঈশ্বর আমাকে সবসময় সাহায্য করে, এবং ঈশ্বর যাতে আমরা যাতে এইটা না ভাবি যে আমার আজই ঈশ্বরের শক্তির প্রয়োজন নাই, ঈশ্বরের দরকার নাই, এরকম যাতে না ভাবি। আমার সবসময় ভাবা উচিত যে ঈশ্বরের শক্তি আমার প্রয়োজন। इसलिए प्रभु जो है हमारी सहायता करे कि हम ये चेतावनी जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा करंथी विश्वासियों को लिखी थी उस पर हम भी अमल करें और हर रीति से हम परमेश्वर को प्रश्न कर सकें। আর আমরা এটা দেখির পারি যে করন্থীয় মণ্ডলীর লোক এই এই জিনিসটা কসে তোমাক তোমাক সচেতন করেছে যাতে এরকম পাপ তোমরা না করে, এরকম জিনিস না করে। আর এইটা আমার জন্যও যাতে আমরাও এরকম না করি, আর সবসময় যাতে ঈশ্বরের উপর আমরা নির্ভর করি। और प्रभु यीशु मसीह जो कि जिसने हमें अपने खून से खरीदा है उससे हम मेल कर ले। जिसका मेल नहीं हुआ है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, वो आज मेल कर ले। ऐसा ना हो कि वे भी
इस दुनिया में ढेर हो जाए, जिस प्रकार वे यहूदी लोग ढेर हो गए थे। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট চায় যে আমরা যাতে প্রভু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে মিল রাখি এবং প্রভু যীশুর যে যে উদ্ধার আমাক দিছে সেই উদ্ধার যেন আমরা নিই এবং উদ্ধার সেই পাই এবং যাতে এই জগতের লোকের মতো আমরা যাতে সে মানে একবারে ইয়া হয়ে না যাই, শেষ হয়ে না যাই। और किसी बात पे हम ना कुड़कुड़ाए ना बुड़बुड़ाए, ऐसा ना हो कि वो सांप के द्वारा जो है हमें ताड़ना दे। আর আমরা যাতে এই জগতত যেন আহ ফুসফুসাই না বা আমরা যাতে কোনো খারাপ চিন্তা ভাবনা না আনি, যাতে আমরা সাপের দ্বারা যাতে আমার মৃত্যু না হয়। और हम पूर्ण रूप से उस पे निर्भर रहें। निर्भरता जो है, निर्भरता का जो जीवन है, वही खजाना है एक विश्वासी का, जिसके द्वारा परमेश्वर उसको इनाम देता है। আর আমরা যাতে সব সময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি এবং বিশ্বাস রাখি, আর এটার মাধ্যমেই ঈশ্বর আমাকে সন্তুষ্ট থাকে। कि परमेश्वर मेरा कुछ भी बैकअप प्लान नहीं है, मेरे पास केवल तू है और तू ही है जो मुझे आगे लेकर चलेगा। और जब हम अपनी आंखें उस पर लगा कर रखते हैं और निर्भर करते हैं, तो चाहे कितने भी तूफान आ जाए या आंधियां आ जाए, हमें जो है, हमें परमेश्वर के उस आत्मिक जल से शांति मिलती रहेगी। আর আমরা যতই সংকটে পড়ি না কেন, আমরা যতই পরীক্ষার মধ্যে পড়ি না কেন আর অন্ধকারে পড়ি না কেন, আমরা যদি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করি আমরা, তাহলে ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করিবে। उन यहूदी लोगों को वो मन्ना दे रहा था, उन यहूदी लोगों को पानी दे रहा था जंगल के अंदर। उन यहूदी लोग जो है उनके बारे में उनको सबसे अच्छा दे रहा था, परंतु हम देखते हैं कि वे लोग समझ नहीं पाए उस परमेश्वर को। आइए हम भी वही गलती ना करें कि जब वो देगा तो सबसे अच्छा देगा। अगर हम उसको समझना चाहें तो हम स्वर्ग में वो हमें समझा सकता है। আর ইহুদি লোকরা ছিল উমাক যে ঈশ্বর সেই জল বা যে কোনো জিনিস দিচ্ছে, উমরা সব থেকে ভালো জিনিসটা দাসে, কিন্তু উমরা বুঝির পাচ্ছে না। সেরকম যাতে আমার জীবনও আমরা এরকম না হয়, যাতে ঈশ্বর আমাকে দেশে কিন্তু আমরা বুঝির পাছি না, এরকম যাতে না হয়। हम देखते हैं पौलुस जो था, जो ये पत्र लिख रहा है, ये बहुत से दुख और दर्द में निकल रहा था। इस पे बहुत सी ताड़नाएं लग रही थी। ये जेल के अंदर बैठकर पत्रियां लिखता था, परंतु ये कभी कुड़कुड़ाया ही नहीं, ना बुड़बुड़ाया। আর পোল যে ছিল, পোল এই এই সব জিনিস যে ও লেখিছে, কিন্তু ও খুব তাড়নার মাধ্যমে ছিল, ও জেলত ছিল এই চিঠিগুলো যেটা লিখিছে। কিন্তু পোল যে ছিল তবু ও চুপচাপ ছিল, কিন্তু কোনো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনো কমপ্লেন করেনি। और उसका राज क्या था? उसकी आंखें मिस्र में नहीं लगी थी, परंतु उसकी आंखें उस निशाने पे लगी थी जो वो देख रहा था कि उसको उस निशाने पर पहुंचना है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जहां पर प्रभु यीशु मसीह है। আর পোল যে ছিল, পোলের চোখ মিশরের দিকে ছিল না, ওর চোখ ছিল সেই উপরের দিকে, যেটা কিনা প্রভু যীশু খ্রিস্ট আছে। तो प्रिय भाई और बहनों, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे आप जेल में हैं, चाहे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, चाहे आप छोटे से घर में रहते हैं, अगर वहां पर प्रभु यीशु मसीह है, जिस प्रकार पौलुस के साथ उस जेल में प्रभु यीशु मसीह था, तो वही स्वर्ग बन जाता है। अगर पौलुस नहीं बताता कि वो अपनी पत्री जेल से लिख रहा है, तो हमें कभी नहीं पता लगता, ऐसा लगता है कि वो महल से बैठ के लिख रहा है। আর মোর প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এটা কিনা তোমরা দেখেছেন যে তোমার হয়তো ছোট একটা ঘর আছে, বা তোমরা জেলত আছেন, বা তোমরা কোনো তাম্বু টাঙে আছেন, হ্যাঁ, তবুও তোমার আমরা দেখতে পারি যে যদি তোমারটা প্রভু যীশু খ্রিস্ট আছে, যদি আমারটা প্রভু যীশু খ্রিস্ট আছে, তাহলে এটা স্বর্গ। কারণ পোল যে ছিল, পোল জেল থেকে ও সমস্ত কিছু লিখিছে,
কিন্তু যদি এটা উল্লেখ করা না হলে হয় তাহলে আমরা বুঝি নি হয় যে পোল জেল থেকে এই জিনিসটা লিখিছে, কিন্তু আমরা বুঝির পারি কারণ লেখা আছে যে পোল জেল থেকে এই চিঠি লেখা হয়েছে। प्रभु अपने वचनों पे आशीष दे। आइए हम इन चेतावनियों के साथ अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसको खुश रखें और किसी प्रकार से उसको हम दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि उसने बहुत दुख ले लिया है हमारे लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। আর এই বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হোক। আর এটাই আমার জন্য একটা সচেতন করা যে যাতে আমরা ঈশ্বরের মহিমা করি এবং ঈশ্বরের গৌরব করি, কারণ ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে সেই ক্রুশত, এলা যাতে আমরা আমার জীবন দ্বারা ঈশ্বরক আমরা মহিমা দিই। আর এই বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা হোক।